Hello students, welcome back. This is the video of class 8 science, and here I am going to start chapter 2, and the name of the chapter is microorganisms, friend and foe. So first of all we will see what are the learning objectives of this chapter. So after completion of the chapter you will be able to know about the classification of microorganisms. You will understand the place where microorganisms live. You will be able to know the usefulness of microorganism. You can get to know the harm caused by microorganism, and you will understand the art of food preservation. So as the name suggests of this chapter, microorganisms, so the organisms which are very small, they cannot be seen with our naked eyes, hence they are called microorganisms, because micro means very small. So the organisms which are very small, they are called microorganisms, and because these organisms are beneficial as well as the harmful for us, so that's why it is written that friend and foe, because some of the microorganisms are very beneficial to us, they behave like our friend, they help in many ways, and some of the microorganisms, they are very harmful to us, they cause diseases and so many problems in our daily lives. That's why they are also called as foe, means enemy. So let's begin the chapter. Microorganism is a term used for a living thing that is too small to be seen with the naked eyes. So the microorganisms are those living beings that are very small, that are too small so that we cannot see with our normal eyes. And microorganisms are also known as microbes. They are all around us, means they are found everywhere, in the air, in the water, in the soil, everywhere. And because they are very small, we cannot see with our naked eyes, so we use an instrument that is called microscope. That microscope magnify the image of the microorganisms and we can see them with it. Now there is a term microbiology, which is the branch of science which deals with the study of microorganism, means in the branch of science in which we study about the microorganism, they are called, that branch of science is called microbiology. Now we will understand about the classification of microorganism, means how many types of microorganisms are there. So microorganism may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. So some of the microorganisms are unicellular, means they are made up of only one cell, and some of the microorganisms are multicellular, means they have many cells, in their body, so they are multicellular just like algae and fungi. Now microorganism can be classified into 5 major groups. Microorganisms के 5 major groups होते हैं. What are these? First one is bacteria, second is virus, third is algae, fourth is fungi, and fifth is protozoa. So one by one we will discuss about them, what are these and how they are. So first of all we will discuss about the bacteria. And bacteria, they are very small unicellular organism. Keep this in your mind that bacteria are always unicellular, means they are made up of only one cell. उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, इन एयर, इन वाटर, इन हॉट स्प्रिंग, इन सॉइल, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन, पिग्स एट्सेट्रा. बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हवा में भी, पानी में भी, हॉट स्प्रिंग में भी, बहुत गर्म पानी में भी, मिट्टी में भी. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं.
बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप। उनकी शेप, उनकी सेल का जो शेप होता है उसकी बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज 4 टाइप्स? दीज 4 टाइप्स आर हियर। द फर्स्ट काइंड ऑफ शेप इज रॉड शेप। जिस भी बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप होता है, लाइक दिस रॉड शेप, दे आर कॉल्ड बैसिली, उनको हम बैसिली बोलते हैं। एंड द शेप ऑफ द बैक्टीरिया विच इज़ हैविंग स्फेरिकल शेप, उनको हम कोकाई बोलते हैं। एंड जिस भी बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल होता है, लाइक दिस स्प्रिंग शेप होता है, उसको हम स्पिरेला कहते हैं। एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका शेप जो होता है वो कॉमा शेप होता है, कॉमा की तरह होता है, लाइक दिस कॉमा की तरह, उनको हम विब्रियो कहते हैं। सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. Now the bacteria move with the help of flagella which are hair like structure. बैक्टीरिया के सेल पे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं. दिस इज द फ्लैजिला एंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला दे कैन मूव, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड, फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर और लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट. उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, लाइक वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, कहीं और से भी, दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर दे लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर भी अपना खाना न्यूट्रिशन इनटेक कर सकते हैं. दे नीड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर एंड मॉडरेट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ. इनमें ग्रोथ के लिए इनको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चाहिए. मॉइस्ट एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पे नमी हो, पानी हो, एंड उनका टेम्परेचर कैसा चाहिए? मॉडरेट, मीडियम टेम्परेचर चाहिए. Under favorable condition, bacteria reproduce very fast by a process of binary fission. This is the method of reproduction, that is binary fission. बाइनरी फिशन के थ्रू बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं. A number of bacteria cause diseases to the animal, plant and human beings, whereas some bacteria are very useful. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, और ना सिर्फ हमारे लिए बट वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी बीमारियां, डिजीज़ेस कॉज करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए बहुत काम आते हैं. द टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम. ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम, ये क्या है? हमारे लिए बेनिफिशियल है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. और ये बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल करते हैं फॉर द प्लांट्स. एंड आपने और भी बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जो बीमारियां कॉज करते हैं, लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा. ये सारी डिजीज़ेस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ हैं. बैक्टीरिया जो है ये कॉज करते हैं. एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स एनिमल के इंटेस्टाइन में रहते हैं, like cows and buffaloes, and they help in the breakdown of cellulose and make the digestion of food simpler. Now we will talk about the next kind of microorganism, that is viruses. So what are these? These are the extremely small and can be studied only with the electron microscope. These are the things that are very small and we can study them with the help of electron microscope only. All of them parasite. Viruses जो होते हैं वो क्या होते हैं? All are parasite, means they live on the body of other living organism, and outside a living host they behave like non-living organism. अगर किसी होस्ट के, लिविंग होस्ट से बाहर अगर वो रहते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन जैसे ही दे एंटर द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं, दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट. तो वो क्या करने लगते हैं? दे परफॉर्म द रिप्रोडक्शन. वो बहुत तेज़ी से ग्रो और रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करने लगते हैं, एंड दे जस्ट बिहेव लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसीलिए हम
वायरसेस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, वो दे स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस। इसीलिए हम उनको लिविंग बींग्स बोलते हैं, ना तो हम नॉन लिविंग बींग्स बोलते हैं। वी कॉल देम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे नीड अ लिविंग सेल टू ग्रो एंड फॉर न्यूट्रिशन। उनको ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए हमेशा लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। विदाउट लिविंग सेल दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। दे आर एजेंट्स ऑफ डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, एंड प्लांट्स में भी, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू, लाइक कॉमन कोल्ड, मीजल्स, पोलियो, एड्स, स्वाइन फ्लू। एंड नाउअडेज द डिजीज़ विच इज़ वेरी common and which is pandemic, that is COVID-19. This is the disease which is caused by the virus named as corona, and nowadays you can see this virus is causing havoc in the whole world. आजकल ये पूरी दुनिया में ये हैवोक कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। सो दिस कोरोना वायरस इज़ इन्फेक्टिंग आवर लंग्स एंड कॉजिंग डेथ. So we need to be careful, and we need to save ourselves from this. Now some viruses can even infect bacteria. These are called bacteriophages. कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, मीन्स दे इन्फेक्ट द बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकते हैं। ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए कुछ वायरसेस के, यू कैन सी दैट दीज आर द पिक्चर्स विच आर टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस, HIV एड्स वायरस एंड पोलियो वायरस. दे लुक लाइक दिस. So from the out of five microorganisms we have discussed about bacteria and viruses, and now in the next video we'll talk about algae, fungi and protozoa. Till then, be good and do good, be safe. Thank you.